ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਲਾਂਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਇਲ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੱਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਦੀ ਮਿਨਰਲਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸੈਕਟਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। 10 ਲਿਸਟ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ 10 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਤੋਂ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਾਪਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਪਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਟੀ ਯੈਲੋ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਟਲ ਲੀਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਫ ਮੈਂਗੋ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲਾਂਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਟਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ, ਫੰਗਲ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਜਿਹੜੇ ਫੰਜਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ यानी कि वायरल डिजीज़ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਟੰਡਨ ਕਲਾਸਿਸ ਤੇ। ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਯਸ਼ਿਕਾ ਟੰਡਨ। ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇਖ ਲਿਓ, ज़्यादा जल्दी ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਲਾਂਟ डिजीज़स ਬਾਰੇ, ठीक है। देखो प्लांट डिजीज़ का मतलब, डिजीज़ का मतलब की होंदा है, सब तो पहला तो ये समझो डिजीज़ का मतलब ये है कि सपोज करो कि प्लांट नू जिस तरीके नाल काम करना चाहिए सी उस तरीके नाल काम नहीं कर रहा, जिस तरीके नाल उहदी ग्रोथ होनी चाहिए सी उस तरीके नाल ग्रोथ नहीं कर रहा। तो आपां कह सकते हैं कि प्लांट डिजीज़ का मतलब की है, इंटरप्शन मतलब रुकना, इंटरप्ट होना ऑफ द नॉर्मल स्टेट। नॉर्मल स्टेट मतलब जो तुसी कह लो नॉर्मल तरीके नाल ओहदी जिहड़ी फंक्शनिंग होनी चाहिए सी ओह नहीं हो रही है। हुण ये जिहड़ी कह लो प्लांट डिजीज़स हुंदे हन, ये लगदे किद्दां ने, दो तरीके नाल आपां इहनूं कह सकदे आ। एक कोई भी मिनरल दी कमी होण करके, दूजा नंबर कह लो पैथोजन्स करके। मैम ये तुसी नवी टर्म यूज़ करती है, पैथोजन्स का मतलब की होंदा है बच्चा? पैथोजन्स का मतलब होंदा है कि तुसी कह लो आपां ना एक जिवें बैक्टीरिया घरे आपां दही खाने ना, दही दे विच दुध दी जे असीं गल कीती जावे, दुध मिठा तुहानूं टेस्ट करदा है ना, जदों ही दुध फट जाता है ना तो तुहानूं खट्टा टेस्ट करना शुरू कर दिंदा है। इदां क्यों हुंदा? इदां इस करके हुंदा है कि जिहड़ा तुहाडा बैक्टीरिया हुंदा है ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਸਿਡ, ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਖੱਟਾ ਟੇਸਟ ਕਰਦਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਦਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੈਕਟੋਬੈਸਿਲਸ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੈਲੋਮੀਨਾ ਟਾਈਫੀ। ਇਹ ਸੈਲੋਮੀਨਾ ਟਾਈਫੀ ਕੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਵਾਇਰਸ, ਫੰਜਾਈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੰਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੰਜਾਈ ਕਹਿ ਲਓ, ठीक है, काई फंजाई हो गई, ठीक है, तुहाडा बैक्टीरिया किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दे उत्ते अटैक करदा है ते ओनू कोई ना कोई बीमारी दिंदा है, ओनू आपां
ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਥੋਜਨਸ। ठीक है, समझ आ गया कि पैथोजनस की होंदे हन। हुण इसी तरीके नाल इन्हां द्वारा की हुंदा है कि बड़े सारे पैथोजेनिक सबसटांसिस रिलीज किते जांदे हन जो प्लांट्स नूं कह लो डिजीज दिंदे हन। इन्हां दे कारण ही प्लांट्स नूं डिजीज लगदे हन। ते यही सानू जिहड़ा है जानना है कि किहड़ा पैथोजन किहड़ा डिजीज दिंदा है ते की उहदे नाल जिहड़ा है प्लांट नूं हुंदा है। या आपां कह लैंदे आ कि कोई भी डेफिशिएंसी हो जाती है किसी मिनरल करके तां प्लांट्स नूं जिहड़े है डिजीज़ देखण नूं मिलदे हन। गल तुहानूं मैनूं लगदा है कि बहुत वधिया तरीके नाल समझ आ गई होनी। ते हुण असीं गल करदे हां कि किहड़े किहड़े डिजीज़ जिहड़े ने ओह हुंदे हन। सब तो पहला तां आपां गल करांगे मिनरल्स बारे कि किहड़े मिनरल करके किहड़ा डिजीज़ जिहड़ा हुंदा है। मैं तुहानूं कुछ ही डिजीज़ दे नाम लिखवावांगी, वो तुहानूं याद करने पैणे हैं। बकायदा ये थोड़ा याद करन वाला लैक्चर हैगा। प्लीज़ अपनी कॉपी पैन निकालो ते इन्हां नूं नोट डाउन करो। जिहड़ी तुहाडी एग्रीकल्चर दी बुक हैगी है या नोट्स हैगे आ, मैनूं उहनूं प्रिपेयर करन च थोड़ा जिहा टाइम लगेगा। मैं क्वालिटी ते गल करदी हां, इदां नहीं। पर मेरे लैक्चर मैनूं लगदा है कि मैं सारी चीज़ां तुहानूं समझानी आ। जे तां तुसीं सीरियसली लैके एक स्टूडेंट दे वांगू सीरियस लैके पढ़ो तो मैनूं लगदा है कुछ होर गल दी कोई लोड़ ही जी नहीं हैगी है। तुसीं लैक्चर दे थ्रू भी बहुत वधिया तरीके नाल समझ सकदे हो, अपने नोट्स बना सकदे हो, है ना। आलस नहीं करीदा भी, फ्यूचर तुहाडा है जी, पेपर तुहाडा है, मेरा नहीं है। ये गल नूं याद रखो। इस नूं थोड़ा जिहा सीरियस जे हो जाओ। इदां क्यों करदे हो? PDF मोबाइलां च लै के उन्हें रट्टा मारी जाना, ये बहुत पुराना मैथड हैगा जी। बाकी यूट्यूबर फॉलो करते होगे, बाकी टीचर्स फॉलो करते हैं। मैं तो तुहाडे तो मेहनत करवावांगी थोड़ी जी वाधू। पेपर पोस्ट लैनी है तो थोड़ी जी मेहनत करो, मज़ा तुहानूं भी आवे, थोड़ा पता लगे कि गवर्नमेंट बाबू बनना आपां, है ना, पटवारी बाबू बनना। चलो चलिए फिर करिए स्टार्ट अगे। चलो करदे आ स्टार्ट। हुण सब तो पहला तां असी अगर देखिए, देखो इन्हां नूं एक पहला आपां दो तरीके नाल प्लांट्स दे डिजीज़ नूं कैटेगराइज करदे आ। डिवाइड जिन्हों आपां कहने आ। पहले नंबर ते आंदे आ साडे अबायोटिक डिजीज़। दूजे नंबर ते आंदे आ साडे कह लो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जिहड़े साडे डिजीज़ है ओह। हुण पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम दे डिजीज़ भी तुहाडे 3 कैटेगरी दे हुंदे आ। एक वायरस के द्वारा जो डिजीज़ किए जाते हैं, एक फंजाई के द्वारा जो डिजीज़ किए जाते हैं, एक तुहाडे बैक्टीरिया के द्वारा जो डिजीज़ किए जाते हैं। ठीक है। अबायोटिक डिजीज़ का सब तो पहला मतलब समझो कि अबायोटिक डिजीज़ का मतलब इत्थे की है। देखो अबायोटिक डिजीज़ जिहड़े होंदे ने ये मेनली उदों होंदे ने जदों भी कदी तुहाडा किसी भी असेंशियल जिहड़ा मिनरल एलीमेंट हुंदा है वो प्लांट्स दे विच नहीं मिलता, वो प्लांट्स नूं नहीं मिलता, या सॉइल तो नहीं मिलता या खादा तो किसी भी कारण तुसीं कह लो। तो आपां लिख सकते हाँ अबायोटिक डिजीज़ जिहड़े होंदे ने मेनली ओरिजिनेट करते ने एंड स्प्रेड करते ने ड्यू टू द लैक ऑफ एनी असेंशियल मिनरल एलिमेंट। ठीक है जी। हुण सब तो पहला आपां आ कैटेगरी खत्म करांगे, फिर आपां आ कैटेगरी स्टार्ट करनी है। तां आइए जिहड़े इहदे नाम मैं लिख रही हाँ उन्हां नूं तुहानूं याद रखना है। देखो जदों कदी डेफिशिएंसी हुंदी है कॉपर दी, डेफिशिएंसी का मतलब समझते हो कमी होना। ठीक है। कॉपर भी चाहिए होंदा है प्लांट्स नूं, एक तरीके का माइक्रो मिनरल है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक डिजीज़ ਹੁੰਦਾ जिहदा नाम ਹੁੰਦਾ, मैं सिर्फ ना डिजीज़ का नाम दसांगी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ डिटेल नहीं करांगे, करन दी लोड़ ही नहीं हैगी है। सानू सिर्फ नाम पता होना चाहिए, ये तुहानूं याद करने पैने। जे तां तुहाडी डिफिशिएंसी हुई है कॉपर दी तो एक डिजीज़ ਹੁੰਦਾ जिहदा नाम ਹੁੰਦਾ है डाईबैक डिजीज़ ऑफ लेमन। लेमन का मतलब समझते हो ना, नींबू नूं ਹੁੰਦਾ।
ठीक है, ये याद रखना। हुण ये क्वेश्चन से सीधा आ जाएगा, डाई बैक डिजीज ऑफ लेमन एक किहदे मिनरल करके हुंदा है, कॉपर, सल्फर, जिंक, मैगनीज, तुसीं याद रखना है कॉपर। हुण एक होर चीज़ याद रखो, कॉपर करके एक होर डिजीज हुंदा है जिन्हों आपां कहने आ लेमन दे पेड़ जिहड़े लेमन हुंदे ना उहदे ही जिहड़े कह लो कि उहदे जिहड़े लीव्स हुंदे ने लिटल छोटे रह जांदे ने, ते ये भी लिख लियो। दूजा लिटल लीफ डिजीज ऑफ लेमन, ठीक है, ये दो गल्लां समझ आ गई। हुण इसी तरीके नाल आपां एक होर बड़ा इंपॉर्टेंट करदे हां, जे सपोज करो डिफिशियंसी आवे किसी जिंक दी, जिंक भी एक तरीके दा माइक्रो मिनरल ही हुंदा है, प्लांट्स नूं चाहीदा हुंदा है। जिंक दे डिजीजेस भी बड़े हुंदे ने, जिवें एक हुंदा है तुहाडा खैरा डिजीज ऑफ पेडी, पेडी का मतलब समझ गए? हाँ बहुत वधिया, मैं नहीं दसना जे तुहानूं याद नहीं हैगा, मैं सारा कराता। चलो, खैरा डिजीज ऑफ पेडी जिंक दे करके हुंदा है, ठीक है। हुण अगर एक आपां डेफिशिएंसी करिए जिंक दी, एक होर तुहानूं याद रखना है कि जिंक दे करके मैंगो यानी कि अंब दे विच भी हुंदा है, उहनूं आपां कहने लिटल लीफ ऑफ मैंगो, ठीक है। और इदा ही एक होर भी हुंदा है, वो कह लो लिटल लीफ ऑफ स्पीसीज, जिहड़े स्पाइसिस हुंदे हैं ना, प्लांट स्पाइसिस, ओहदे भी जिहड़ी लीव्स हुंदियां ने लिटल रह जांदियां ने, ते ये तुहाडा जिंक दे कारण हुंदा है, याद रखना है तुहानूं। देखो कुछ औखा लग्या, लेमन दी गल आवे तां कॉपर, पैडी मैंगो दी गल आवे, स्पाइसिस दी लिटल लीफ होवे तां जिंक। कोई एडा औखा काम नहीं है इहनूं याद करना। हुण मैं तां ही लिख रही हां ताकि तुहानूं याद हो जावे, उपरों तुहाडे लंघे ना। उस तो बाद अगे गल करदे हां, एक तुहाडा हुंदा ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैगा जिहड़ा आंदा है, इनू आपां कहने मार्श डिजीज ऑफ पी, मार्श डिजीज ऑफ पी, ये मैग्नीशियम करके हुंदा है, मैगनीज करके, सॉरी मैगनीज, ठीक है। मैगनीज करके एक होर डिजीज हुंदा है, ये शुगर केन दा डिजीज है, गन्ना जिन्हों आपां आखदे हां, शुगर केन दा डिजीज आ, यह नेम है इहदा, जिन्हों आपां कहने आ फगला ब्लाइट ऑफ शुगर केन, ये भी मैगनीज करके ही कमी दी करके हुंदा है, ठीक है। ये तुहानूं याद रखना है। एक ना तुहाडा राइस दी बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज है, जिन्हों आपां कहने आ मार्जिनल लीफ ड्राइंग इन राइस, ये भी तुहाडा जिहड़ा हैगा ना, ये हुंदा पोटाशियम दी कमी करके, किहदी करके? पोटाशियम दी कमी करके। आह बस तुसी याद रखने हैं। देखो आ 3-4 मैं तुहानूं हजे लिखाए है, बाकी जिहड़े कवर अप करदी जाऊंगी क्वेश्चंस च भी कवर अप थोड़े बहुत कर लांगी जिहड़े मैनूं लगूगे इंपॉर्टेंट है। फिलहाल लिए मैनूं लगदा है कि आह तुसी बहुत चंगे तरीके नाल याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। चलो हुण आपां वधदे हां अगे। हुण जदे आपां दूजा कैटेगरी जिहड़ी आपां करनी है, वो करनी है पैथोजन्स वाली। पैथोजन्स वाली सब तो पहला तो मैं फंजाई वाली कंप्लीट करांगी, क्योंकि फंजाई दी थोड़ी बहुत ज़्यादा ने डिजीज़, तां आ सब तो पहला जिन्हों आपां कहने फंगल डिजीज़। हुण ना इहदे च की हैगा कि तुसीं देखोगे फंगस जिहड़ी हैगी ना, ਉਹ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੰਜਾਈ ਕਹਿੰਦੇ 4000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ। 4000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਸ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੇਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛੂਗੇ ਕਿ ਮੇਜਰਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿ ਫੰਜਾਈ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛ ਲੇਗਾ अर्ਲੀ ਬਲਾਈਟ ऑफ पटैटो, आ डिजीज किदे करके हुंदा है? ऑप्शन दे देगा फंजाई, एलगई, सी ऑप्शन देता उन्हें वायरस, डी ऑप्शन उन्हें देता बैक्टीरिया। तुहानूं इन्ना पता होना चाहिए जी ये फंजाई करके हुंदा, गल खत्म, ठीक है जी। आह आपां मेनली करना है कि किहड़े किहड़े डिजीज़ जिहड़े हुंदे ने ओह साडे किहदे करके हुंदे ने,
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਾਂਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ SSC ਲੈਵਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਆਂਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ अर्ਲੀ ਬਲਾਈਟ। अर्ਲੀ ਬਲਾਈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਸ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਲੀਵਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ, ਇੱਕ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫੰਗੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਸਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਓਕੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸੀ ਤੋਂ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੇਟ ਬਲਾਈਟ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆਲੂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੇਟ ਬਲਾਈਟ ਆਫ ਪੋਟੈਟੋ ਐਂਡ ਟੋਮੈਟੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਮੈਟੋ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਪੋਟੈਟੋ 'ਚ ਵੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਥੋਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਸਾਡੀ ਫਸਲਸ ਨੂੰ। ਲੇਟ ਬਲਾਈਟ ਆਫ ਪੋਟੈਟੋ ਐਂਡ ਟੋਮੈਟੋ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੰਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੈਂਪਿੰਗ ਆਫ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੈਂਪਿੰਗ ਆਫ ਸੀਡਿੰਗਸ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡੈਂਪਿੰਗ ਆਫ ਸੀਡਿੰਗਸ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਫੰਜੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੰਜਾਈ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਟ ਦਾ ਹੈ ਮੇਨਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਡਾਟਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਟ ਆਫ ਵੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਸਟ ਆਫ ਵੀਟ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਟ ਆਫ ਵੀਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਫੰਜਾਈ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਲਿਖੋ ਜੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਰੈੱਡ ਰੌਟ ਆਫ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ। ਡਾਟ ਡਾਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈੱਡ ਰੈੱਡ ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨਸ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਜਾਈ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਜਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਬਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵੀਟ ਸਮਟ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੂਜ਼ ਸਮਟ ਆਫ ਵੀਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੀਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀਟ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕਲਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਅਗੇਨ ਫੰਜੀਸਾਈਡਸ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੰਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲੂਜ਼ ਸਮਟ ਆਫ ਵੀਟ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਫੰਜਾਈ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਫੰਜਾਈ। ਰਸਟ ਆਫ ਵੀਟ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਰਕੇ, ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ, ਫੰਜਾਈ ਕਰਕੇ ਜੀ ਫੰਜਾਈ। ਰੈੱਡ ਰੂਟ ਆਫ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਫੰਜਾਈ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡੰਪਿੰਗ ਆਫ ਸੀਡਿੰਗਸ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਫੰਜਾਈ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਮ, ठीक है। उस तो बाद होर किहड़ा डिजीज़ लगाया, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड अर्ली ब्लाइट। ये दोनों डिजीज़ किहदे करके हुंदे, ये भी डिजीज़ जिहड़े आ तुहाडे फंजाई करके। ये तुहानूं फंजाई दे कुछ डिजीज़ याद रखने ने। उस तो बाद जिहड़ा मार्श डिजीज़ ऑफ पी है मैगनीज़ करके हुंदा है। शुगर केन दा फगला ब्लाइट वाला डिजीज़ भी मैगनीज़ की कमी करके हुंदा है। मार्जनल लीफ ड्राइंग इन राइस से पोटाशियम की कमी करके हुंदा है। ये करवाया जिंक की डेफिशिएंसी करके, जिवें खायरा ऑफ पेडी, लिटिल लीफ ऑफ मैंगो, लिटिल लीफ ऑफ इन प्लांट स्पीसीज, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ कॉपरली, डाईबैक डिजीज़ ऑफ लेमन एंड लिटिल लीफ डिजीज़ ऑफ लेमन। ये साडे प्लांट डिजीज़ का पहला चैप्टर है। हजे बहुत सारे ये चैप्टर आओगे, कम से कम मैं 6 या 7 लैसन ये लैके आवांगी। धीरे धीरे करांगे। इन्ने जे नोट्स बनाओ तो इन्हों रिवाइज करो। अज तो तुहाडे को पूरा दा पूरा दिन हैगा वा, ये तुहाडे पूरे टिप्स ते हो जाने चाहिए। ते नाल दी नाल मैं मॉक टेस्ट लेके आऊँगी, उस मैं 5 क्वेश्चन तुहानूं डिजीज़ 5 या 10 क्वेश्चन डिजीज़ दे करवानी आ, जे तुहाडा थोड़ा कॉन्फिडेंस लैवल है इंक्रीज होवे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।